Hello viewers, welcome to my channel Pots and Plants. Today we are going to talk about Araucaria heterophylla, commonly known as Norfolk Island pine. This plant is also called star pine and Christmas tree. Araucaria heterophylla is sometimes called star pine on account of its star-like appearance when looked down on from above. Araucaria heterophylla hails from the Norfolk Island, a small island in the Pacific Ocean between Australia and New Zealand. Norfolk Island pine or Araucaria heterophylla is an evergreen gorgeous house plant. Many people use it as a living Christmas tree. Norfolk pines come small enough to sit on a table and large enough to fill the corner of a large room. Growing high, it has a straight trunk and pleasing symmetrical branches covered with these short inward curving needles. Grown indoors, it gets 3 to 8 feet tall. Outdoors, it can grow high up to 200 feet. The wood of large trees is used in construction and furniture making. Grow Araucaria in a medium to bright spot in your home. Find a sunny spot, ideally a south-facing window for your plant. The more indirect bright light it gets, the better. Bright light will encourage strong, healthy horizontal branches with a graceful symmetry for which Araucarias are known. The plant likes sunlight but will not tolerate a full day of it. During the growing season, the Araucaria heterophylla can gain some height if it receives few hours of bright indirect light per day. The less light it gets, the slower it will grow. It will be weak, spindly and unattractive. Being from tropical climate, the Araucaria plant prefers warm environment. Normal indoor home temperatures are fine for this plant, but avoid placing them in drafty areas. While this plant can potentially spend the summer months on a covered patio or porch away from direct sunlight, it definitely needs to be brought back inside at the end of summer when temperatures begin to drop. Another thing to understand about indoor Araucaria plant care is that being a tropical plant, they need high humidity. Keep the humidity around the tree will help it thrive. This can be done by either using a pebble tray with water, using a humidifier in the room, or a weekly misting of the plant. If growing Araucaria plant indoors, use a soil mix that is porous, sandy and slightly acidic. Use small amount of coco peat to keep the soil damp but not soggy. A potting mix designed for succulents work well, or you can make your own. If you are making your own potting soil, use 30% garden soil, 20% compost, 20% sand or perlite, 20% coarse grit and 10% coco peat. You can also add 1 tablespoon bone meal. Araucaria don't need repotting until roots peek through the pot's drainage hole. When repotting time comes, choose a deep container with good drainage holes and fill it with coarse, fast-draining potting mix. The Araucaria plant has medium water requirements. Let the top few inches dry out before you water your Araucaria thoroughly until the water runs out of the drainage hole. Keep in mind that during summers, the pot soil will dry out more quickly, so the plant needs to be watered more frequently. Rotate your Araucaria plant every time you water. If your plant is getting light from one direction only, this will promote even growth and encourages symmetry. Spring onward is the growing season of this plant. The bright green growth on branch tips signals that the resting period is over, so it is time to fertilize your plant. You can fertilize it with the balanced NPK in granular form, or you can use fish or seaweed emulsion every 5 to 6 weeks from spring until fall. The plant will be dormant in winters, so it's important to lay off the feeding in winter months. If the foliage of your Araucaria plant is turning yellow or brown, then try to determine the cause. Araucarias come from tropical zone. They are sensitive to frost, and during winters, branches yellow and die as temperatures dip. Likewise, if your Araucaria plant remains in extremely high temperatures during summers, Araucaria leaves will turn brown. Araucaria needs ample indirect sunlight, but they don't like direct sun, which can cause yellowing leaves. In this situation, move your plant to shady place. An Araucaria with yellow or brown leaves might have developed a fungal disease. It happens when you are keeping the foliage too wet. Stop overhead irrigation and allow the foliage to dry out. You can also spray your plant with a fungicide. Look out for some other common problems with your Araucaria. Crisping curling needles means that the plant is thirsty and underwatered. If these needles are dropping, it means that the plant is overwatered or it's not getting enough light. If these needles are getting yellow, it means that the plant could be overwatered. Okay viewers, please like, share and subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल पॉट्स एंड प्लांट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरोफियत से होंगे। आज हम एरोकेरिया हेटेरोफिला या नॉर्फोक आइलैंड पाइन के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्लांट को स्टार पाइन भी कहा जाता है और क्रिसमस ट्री भी। एरोकेरिया हेटेरोफिला जो है ये नॉर्फोक आइलैंड का एक नेटिव प्लांट है, जो कि एक स्मॉल आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान पैसिफिक ओशन में। एरोकेरिया एक बहुत ही खूबसूरत पेरिनियल हाउस प्लांट है और ये क्रिसमस के मौके का एक इंपॉर्टेंट प्लांट है। मेरा एरोकेरिया का ये प्लांट तकरीबन 2 साल पुराना है और मैंने इस प्लांट को तकरीबन 12 इंच का पॉट दिया था। नर्सरीज पे एरोकेरिया के ये छोटे प्लांट इजीली अवेलेबल हैं। आप इन प्लांट्स को किसी खूबसूरत से पॉट में लगा के किसी टेबल टॉप या किचन की शेल्फ पे रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप एरोकेरिया का ये बड़ा प्लांट ले लें और इसको आप कमरे के किसी भी ऐसे कोने में रखते हैं जहाँ पे इसको
अच्छी ब्राइट इंडायरेक्ट लाइट मिलती रहे। एरोकेरिया का प्लांट जो है ये स्ट्रेट ग्रो करता है और इसके चारों तरफ जो है इसके ये लीव्स निकलते हैं और हर लीफ के ऊपर जो है ये मल्टीपल जो है इसके ऊपर नीडल्स हैं। ये इनका जो टेक्सचर है ये थोड़ा सा प्लास्टिकी किस्म का है। एरोकेरिया हेट्रोफिला को स्टार पाइन भी कहा जाता है क्योंकि अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो इसकी जो अपीयरेंस है वो एक स्टार की शेप की है। अगर आप इस प्लांट को घर के अंदर किसी पॉट में लगा रहे हैं तो ये 3 से 8 फुट तक ग्रो कर सकता है। आउटडोर्स ये प्लांट जो है तकरीबन 200 फुट की हाइट अटेन कर लेगा। अगर आप एरोकेरिया के प्लांट को घर के अंदर रख रहे हैं तो आप इसको कोई ऐसा स्पॉट दीजिए जहाँ पे इसको पूरे दिन की ब्राइट इंडायरेक्ट लाइट मिले। इसको जितनी इंडायरेक्ट लाइट मिलेगी ये प्लांट उतनी ही जल्दी ग्रो करेगा, ये ज़्यादा हेल्दी होगा, इस प्लांट की सिमेट्री ज़्यादा अच्छी होगी, इस प्लांट के अंदर जो नीडल्स हैं ये फुलर होंगी, ये प्लांट काफ़ी बुशी लगेगा। अगर इस प्लांट को ब्राइट इंडायरेक्ट लाइट नहीं मिलती और ये प्लांट किसी डार्कर एरिया में रहता है तो ये प्लांट कमज़ोर हो जाएगा। इसके जो लीव्स हैं ये येलो होना शुरू हो जाएंगे, इसकी ग्रोथ स्लो होगी और ये इसकी जो सिमेट्री है ये भी ख़राब हो जाएगी और ये काफ़ी अनअट्रैक्टिव लगेगा। एरोकेरिया के प्लांट को वार्म ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट पसंद है। आप इस प्लांट को घर के नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे किसी भी रूम में रख सकते हैं, लेकिन इसको किसी ऐसे रूम में मत रखें जहाँ पे इस पे हर वक्त एसी की ठंडी हवा पड़ती रहे। गर्मियों के मौसम में आप इस प्लांट को अपने पैटियो में या पोर्च में रख सकते हैं, लेकिन इस पे सूरज की डायरेक्ट धूप ना पड़े। आप इस प्लांट को जैसे सर्दियाँ अप्रोच करें तो किसी शेडी एरिया में मूव कर दें। इसको क्लस्टर ऑफ प्लांट्स के दरमियान में रखें और इस प्लांट को किसी नेट के नीचे आप प्लेस कर दें। एरोकेरिया का प्लांट चूँकि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट से बिलोंग करता है इसलिए इस प्लांट को अपने इर्द गिर्द ह्यूमिडिटी पसंद है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने के लिए आप इस प्लांट को वीकली मिस्ट करें। आप इस प्लांट के साथ एक पेबल ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एरोकेरिया के प्लांट को घर के अंदर किसी पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो आप इस प्लांट के लिए एक ऐसा सॉइल मिक्स प्रिपेयर करें जो कि पोरस हो, सैंडी हो, स्लाइटली एसिडिक और वेल ड्रेनिंग हो। आप इस प्लांट के लिए डायरेक्टली कैक्टस और सकल मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कैक्टस और सकल मिक्स अवेलेबल नहीं है तो आप 30% गार्डन सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% सैंड और परलाइट, 20% कोर्स ग्रिट और 10% कोकोपीट के मिक्सचर से सॉइल मिक्स प्रिपेयर करें। इसके अलावा आप इसके अच्छी ग्रोथ के लिए इसके अंदर 1 टेबलस्पून बोन मील भी ऐड कर सकते हैं। एरोकेरिया की प्लांट की मॉडरेट वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। आप इस प्लांट को एक ऐसा पॉट दीजिए जिसमें काफ़ी अच्छे बड़े ड्रेनेज होल्स हों। जब भी इस प्लांट को पानी दें तो मेक श्योर करें कि पानी जो है फ़ौरन जो है ड्रेनेज होल से रिलीज हो जाए और इस प्लांट को दोबारा उसी वक्त वाटर करें जब इस प्लांट की टॉप 1 या 2 इंच सॉइल जो है कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। एरोकेरिया के प्लांट का रूट सिस्टम काफ़ी वीक है और रूट रॉट जो है वो इस प्लांट के ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह है। अगर आपके एरोकेरिया के प्लांट पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन से लाइट पड़ रही है तो इस प्लांट को पानी देते वक्त आप 2 से 3 इंच जो है रोटेट करें ताकि ये प्लांट जो है ये इवनली ग्रो करे, इसकी ये जो लीव्स की सिमेट्री है ये बरकरार रहे। स्प्रिंग ऑनवर्ड इस प्लांट का ग्रोइंग सीजन है। ग्रोइंग सीजन में आप इस प्लांट को किसी बैलेंस्ड एनपीके से फर्टिलाइज कर सकते हैं, नहीं तो 5 से 6 वीक्स के गैप के साथ आप इसको फिश या सीवीड इमल्शन से फर्टिलाइज करें। विंटर के मौसम में ये प्लांट जो है अपनी डोरमेंसी में होता है, इसलिए आपने इस प्लांट को फर्टिलाइज नहीं करना। एरोकेरिया के प्लांट के ये लीव्स कभी कभी पूरे और कभी कभी ये नीडल्स जो हैं ये येलो या ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी कई वजूहत हैं। अगर आपके ये लीव्स जो हैं ये येलो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्लांट जो है ये ओवर वाटर्ड है। अगर ये नीडल्स गिरना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि प्लांट ओवर वाटर्ड है और इस प्लांट को सफिशेंट इंडायरेक्ट ब्राइट लाइट नहीं मिल रही। एरोकेरिया का प्लांट चूँकि ट्रॉपिकल वार्म एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है इसलिए सर्दियों के मौसम में अगर इस प्लांट के ऊपर कोहरा या इसके ऊपर जो फॉग है वो गिरती रहेगी तो इस प्लांट के जो ये लीव्स और नीडल्स ये तभी येलो या ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। तो सर्दियों के मौसम में आप इस प्लांट को किसी शेड के नीचे या घर के अंदर आप मूव कर दें। विंटर्स की फॉग और शदीद ठंड की तरह गर्मियों की तेज धूप से भी आपने इस प्लांट को बचाना है। एरोकेरिया के प्लांट को ब्राइट इंडायरेक्ट लाइट सनलाइट पसंद है। अगर इस प्लांट के लीव्स के ऊपर जो है गर्मियों की तेज धूप पड़ती रहेगी तो इस प्लांट के लीव्स येलो या ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। एरोकेरिया के इन लीव्स के ब्राउन या येलो होने की एक और वजह फंगल डिजीज़ है। अगर आपके ये लीव्स ज़्यादा देर तक जो है ये वेट रहते हैं तो तभी इस प्लांट के अंदर जो है फंगल डिजीज़ डेवलप हो जाएगी। इस केस में आप इस प्लांट के ऊपर एक फंगिसाइड स्प्रे यूज़ करें। ओके व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।